डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मास बैलेंस इक्वेशंस एंड चार्ज बैलेंस इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने आपको इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मल्टीपल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच यूज की जाती है और सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर हमने आपको एक आउटलाइन आपको बताई थी, उसमें मास बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस इक्वेशन थे। तो इस टॉपिक को हम आज यहाँ पर सेपरेट डिस्कस। द मल्टीपल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम वी मस्ट राइट एज मेनी इंडिपेंडेंट इक्वेशन एज देयर आर chemical species in the system. So algebraic equation to solve multiple equilibrium problems are: first, equilibrium constant expression and mass balance equation and charge balance equation. These things we have already discussed in our previous lecture. So let's move on and study some detail about mass and charge balance equation. First of all, mass balance equations. Based on these equations, based on law of mass of conservation, means number of atoms of an element remains constant in chemical reaction because no atoms are produced or destroyed. This is the mass of conservation equation. We can also say that an equation stating that matter is conserved and that the total amount of species added to the solution must equal the sum of the amount of each of its possible forms present in the solution. Now, how to write mass balance equations? This principle is expressed mathematically by equating the concentration, usually in molarities. The equation for all the pertinent chemical equilibria are written from appropriate relations between species and concentrations are written. Thus, in this equation, the analytical concentration is equal to the sum of the concentration of the equilibrium species derived from the parent compound or an appropriate multiple. We will discuss in more details in the examples. Next, charge balance equation. An equation stating that the total concentration of positive charge in a solution must equal the total concentration of negative charge. So, a charge balance equation is a statement of solution electroneutrality in which total positive charge from cations will equal to total negative charge from anions. Let us consider an example. 1 mole of phosphoric acid dissolved in 1 liter in water. So we can see that the concentration of phosphoric acid is equal to number of moles upon volume is equal to 1 mole. Here is the 1 mole is the concentration in mole and total volume is 1 liter. So total molarity is 1 mole. Now we can see that the equilibrium which involves in the following reaction. First of all, we take water. Water will dissociate into H plus and OH minus ion. Further, uh, phosphoric acid is a polyprotic acid. It dissociates in 3 steps. 3 steps, and in first step, S3PO4 will dissociate H plus and dibasic phosphate ion, and in next step we get monobasic, and in last step we get phosphate ion.
Now we will see how the mass balance and charge balance equation will apply in this example. Here we can see that the initial concentration of phosphoric acid is 1 mole. So final concentration in according to mass law of mass of conservation, that initial concentration of phosphoric acid will conserve in the final concentration, or we can say that initial concentration will be equal to final concentration. Now फॉस्फोरिक एसिड का जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा all the species that involve the phosphate ion. So we move on the previous slide. We can see that this phosphoric acid dissociate into dibasic, फिर further dibasic dissociate into monobasic in, so all that species which contain phosphate ion will be responsible for the final concentration. So initial concentration 1 molar is equal to 1 molar will be equal to final concentration. हम जितनी भी स्पीशीज जिसमें कि फॉस्फेट आयन है वो सबको यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया, TOT-PO4 means sum of the concentration of all the species in solution that contain the chemical group PO4. फॉस्फेट आयन जो भी होगा वो सब इस पर होगा. तो अगर हम इसको लिखेंगे तो जो फाइनल जो हमारा मास बैलेंस इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा S3PO4, मतलब इसका ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है प्लस जितनी भी स्पीशीज जिसमें फॉस्फेट आयन है उसको हम इस तरह से लिख देंगे. और हम देख रहे हैं कि ये जो हमें इक्वेशन मिली, ठीक है, ये हमारी इस इक्वेशन की मास बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी. इसके बाद अगर हम चार्ज बैलेंस इक्वेशन की बात देखते हैं तो चार्ज बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए हमें इस इक्वेशन में वाटर को भी कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, जब हम वाटर को कंसीडर करेंगे तो वाटर कैसे होता है, वाटर किस तरह से डिसोसिएट होगा, H2O will be dissociate into H plus and OH minus. तो हमें यहाँ पर इस इक्वेशन इसमें जब हम चार्ज बैलेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को भी कंसीडर करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब हम चार्ज बैलेंस इक्वेशन करने के लिए हम देखते हैं कि कितने पॉजिटिव आयन है और कितने नेगेटिव आयन. ऑल द पॉजिटिव आयंस विल बी इक्वल टू द नेगेटिव आयन. सो अगर हम पिछले उसमें जाएं तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास पॉजिटिव आयन कितने हैं, सब H प्लस है और ये हमारे नेगेटिव आयंस हैं पूरे. तो जब हम इसकी चार्ज बैलेंस इक्वेशन को देखेंगे है ना, तो ये हमारा एक ही है पॉजिटिव आयन H प्लस, H प्लस इज इक्वल टू जितने भी इसमें नेगेटिव आयन है हम उसको लिख देंगे. जैसे H2PO4 एक है, डाई बेसिक जो है वो 2 है, ट्राई बेस फॉस्फेट 3 है एंड 1 OH माइनस. जितने भी हैं हम इसको यहाँ पर लिख देंगे तो वो हमारा जो है वो चार्ज बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा. Okay, now I think it will be clear. Now move on to the next example. In next example, we see that we will take sodium carbonate. The problem is add 1 molar of sodium carbonate into 1 liter water, distilled water. Okay, write down the mass balance and charge balance equation for this solution. So first of all, we have to write all the equilibrium reactions. Sodium carbonate
will be converted into 2 sodium ions plus CO3 2 minus carbonate ion. Further, one more equilibrium will be exist here. This carbonate ion will react with water molecule and form H2CO3 hydrocarbonic acid, and it will dissociate into H plus and SCO3 minus. Further, SCO3 will be converted into H plus plus CO3 2 minus, and this is. तो जो भी हमें प्रॉब्लम हमें मतलब दी हुई है स्पीशीज, पहले हम उसका वाटर के साथ में देखेंगे कि कितनी केमिकल स्पीशीज इस क्वेश्चन में प्रेजेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मास बैलेंस। मास बैलेंस में क्या करेंगे कि जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था वो फाइनल कंसंट्रेशन के बराबर होना चाहिए। तो हम इनिशियल कंसंट्रेशन में हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, सपोज हमने इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, सपोज हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ये x है और ये 0 0 है, ठीक है। अब हमारा जो फाइनल कंसंट्रेशन है, जो हमारा ये इनिशियल कंसंट्रेशन इसका x था, अब हमारा जो फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। सपोज हमने इसको ले लिया तो ये 2 है, तो ये 2x हो जाएगा और ये सिंपल x हो जाएगा और ये हमारा 0। इसको हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सोडियम प्लस इज इक्वल टू 2 CO3 माइनस, ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है। सोडियम प्लस इज इक्वल टू 2 CO3 माइनस। क्लियर, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 CO3 माइनस स्पीशीज जनरेट हो रही है एक सोडियम से। तो हमारा जो कार्बोनेट है इसका इनिशियल कंसंट्रेशन टोटल कार्बोनेट के कंसंट्रेशन के बराबर आएगा। तो जो हमारा मास बैलेंस बनेगा वो हो जाएगा सोडियम प्लस इज इक्वल टू 2 कार्बोनेट आयंस प्लस 1 बाइकार्बोनेट आयन एंड प्लस H2CO3। इसी तरह से हम चार्ज बैलेंस इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो चार्ज बैलेंस में ये एक सोडियम आयन है एंड एक हाइड्रोजन आयन है। इसी तरह से यहाँ पर जितने तो पॉजिटिव आयंस विल बी इक्वल टू नेगेटिव आयन, तो यहाँ पर जितने भी हम पहले पॉजिटिव आयंस लिखेंगे इज इक्वल टू हम फिर नेगेटिव आयंस लिख लेंगे। अब इसी तरह से एक आप देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दी हुई है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, पहले तो हम इसका इक्वेशन लिखा हमने, सोडियम सल्फेट विल डिसोसिएट इनटू Na2Na प्लस NSO4 2 माइनस। अब क्या करेंगे, इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितना दिया है, 0.1 मोल दिया हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.1 मोल, और जब हम इसको आफ्टर डिसोसिएशन हम देखेंगे तो इसके 2 मोल हैं, तो मतलब 2 इंटू 0.1 0.2 हो गया, और सल्फेट आयन है 0.1 है। तो हम क्या करेंगे, हमने 0.1 मोलर से स्टार्ट किया और हमें फिर 0.2 मोलर सोडियम आयन मिले और 0.1 मोलर सल्फेट आयन मिले। तो इसका जो मास बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम प्लस इज इक्वल टू, मतलब 1 मोल सोडियम आयन से हमने यूज किया तो मास बैलेंस इसमें 2 मोल सोडियम सल्फेट के हमें मिलेंगे। तो ये हमारे सोडियम एंड सल्फेट के लिए मास बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब जब हम चार्ज बैलेंस इक्वेशन देखेंगे तो हमको यहाँ पर फिर वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन भी देखना पड़ेगा। फिर जितने पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही नेगेटिव आयंस होंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन H प्लस हो गया एंड Na प्लस इज इक्वल टू 2 सल्फेट आयन एंड 1 हाइड्रोक्सिल आयन। ये हो गया मास बैलेंस, सॉरी चार्ज बैलेंस इक्वेशन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम फॉस्फेट का, अगर हमने ले लिया Na3PO4,
हम फिर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके पूरे इक्विलिब्रियम रिएक्शंस लिख लेंगे और मतलब जितने भी पॉसिबल आयंस यहाँ पर बन सकते हैं लिख लेंगे, फिर वाटर मॉलिक्यूल लिख लेंगे। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने तरह के यहाँ पर ये हैं पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है और ये सब नेगेटिव आयन है। तो चार्ज बैलेंस लिखने पर पॉजिटिव आयंस आप लिख लेंगे H प्लस प्लस 3Na प्लस इज इक्वल टू, और फिर जितने ये हो रहे हैं, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 फॉस्फेट आयन जनरेट हो रहे हैं, 2 फॉस्फेट आयन एंड H2PO4 HPO4 2 माइनस और ये OH माइनस। तो ये हमारा चार्ज बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। मास बैलेंस इक्वेशन में जब हम लिखेंगे तो हम अगर इसको देखते हैं, मास बैलेंस के केस में इनिशियल जो है यहाँ पर हमने देखा कि 1 मोल लिया गया है। 1 मोल लेने के बाद इससे 3 मोल सोडियम बन रहा है एंड 1 मोल फॉस्फेट आयन बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम जब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं, ये मास बैलेंस लिखेंगे तो 1 मोल सोडियम से 3 मोल फॉस्फेट बन रहा है, ये इनिशियल है, और टोटल जो फॉस्फेट का जो इनिशियल है टोटल फॉस्फेट के बराबर हो जाएगा। तो हम टोटल फॉस्फेट निकालेंगे तो जितनी भी फॉस्फेट वाले स्पीशीज हैं उनको हम प्लस करके लिख देंगे, और जब हम मास बैलेंस लिखेंगे तो सोडियम प्लस इज इक्वल टू, अब ये 3 के बराबर है और फिर 3 से इसका इंटू कर देंगे और ये इसका चार्ज बैलेंस इक्वेशन हो गया। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब एक इसी तरह से इसमें सोडियम कार्बोनेट का दिया हुआ है, ठीक है, सोडियम कार्बन 0.1 मोलर सॉल्यूशन दिया है, इसका आपको चार्ज बैलेंस एंड मास बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये डिसोसिएट होगा Na प्लस SCO3 माइनस में, फिर फर्दर जो है SCO3 माइनस फिर वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, कार्बोनेट में डिसॉल्व होगा, फिर SCO3 माइनस फिर वाटर से रिएक्ट करके OH माइनस एंड H2O, और वाटर फिर फर्दर अपना सेल्फ डिसोसिएशन होगा और हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोक्सिल। तो सबसे पहले आपको जितने भी इसमें केमिकल स्पीशीज है पहले वो आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इसके लिख लेने हैं। फिर हम देखेंगे कि जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो उस 0.1 मोलर, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है Na प्लस पे। तो 1 मोल Na प्लस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है SCO3 माइनस में। तो जब हम इसका मास बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा Na प्लस इज इक्वल टू H2CO3 प्लस SCO3 माइनस प्लस CO3 2 माइनस। मतलब जो भी सोडियम आयन है, जितने सोडियम आयन होंगे उतने कार्बोनेट आयन कंटेनिंग स्पीशीज को जनरेट करेंगे, और मास बैलेंस इक्वेशन में हम जितने पॉजिटिव आयन है वो एक तरफ लिख देंगे और नेगेटिव आयन, इस केस में 2 कार्बोनेट से तो यहाँ पर 2 का इंटू हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर अब आप इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं। आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई है। थैंक यू। Thank you, students. I will share more problems to practice on this topic. Thank you.